आज का सेशन कलर इंटीरियर स्टाइलिंग पर है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ कलर्स impact us, impact our body and mind, impact the spaces we live in, impact the environment that impacts us too. So, all in all, the power of colors and the intelligence they carry with them. आई विल बी बाइलिंगुअल। दोनों भाषाओं में हम बात करते रहेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, सो दैट सभी लोगों को बात क्लियर समझ में आ पाए। आप में से मैक्सिमम लोग जो वीडियोस ऑन कर सकते हैं प्लीज ऑन कीजिए, क्योंकि हम कनेक्ट तभी कर पाएंगे जब आपके चेहरे नजर आ रहे होंगे। सो प्लीज ओपन योर वीडियोस, ऑल दोज हु कैन। या आई देयर आर लॉट ऑफ फेमिलियर पीपल। Please open your videos. Good evening, good evening, good evening, everyone. So, today we are talking about something which is not very common, yet it is in everybody's life. Color is not something that you say that I don't know. There is nobody in the world who says I have no idea about colors. Even the blind person has a good perception of colors. They can touch and tell you this is warm color or a cool color. Even the dreams we see are colorful. सो हर इंसान इस संसार में अगर किसी चीज के बारे में जानता है तो वो रंग है। तब की मजेदार बात यह है कि हर इंसान कलर की सच्चाई और गहराई नहीं जानता। उसे लगता है कि मैं कलर्स को जानता हूं। मोस्ट ऑफ द पीपल फील दैट दे नो कलर्स because they have their own perception, they have their own understanding of colors, but the ground reality is that they are far away from colors. During my interior design, when I started my career, I was crazy for colors, crazy for colors. मैं हर वो चीज सीखना चाहता था, रंगों में जानना चाहता था। ये रंग आते कहाँ से हैं? Where do they come from? What is, how does a color impact us? From where does this impact come from? What is the base of the color? डज इट इफेक्ट द बॉडी एंड इन वॉट फॉर्म? तो बड़े सारे प्रश्न थे, क्योंकि मुझे भी लगता था मुझे कलर समझ आता है। लेकिन जब कलर समझना शुरू किया तो ये समझ में आया कि कलर तो अभी तक समझा ही नहीं था। अब समझ में आना शुरू हो रहा है। और इट टुक 10 years, लॉन्ग ईयर्स, लिटरली 10 long years टू अंडरस्टैंड कलर फिजियोलॉजी, टू अंडरस्टैंड कलर साइकोलॉजी, टू अंडरस्टैंड how it impacts my space. So this journey was very interesting, and I will share a lot of things with all of you. I just want to see a thumb. All those people who are comfortable with English, show me a thumb sign, a thumbs up. Okay, that makes the journey easier because I think everybody is comfortable with English. I will try because one of our favorite students, Mr. Mahendran, will find it a little difficult to understand in Hindi. And since I'm looking at him again and again, so it reminds me to continue the session mostly in English. Still, हिंदी में हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। अगर किसी को थोड़ी भी परेशानी आती है तो थम्स डाउन दिखा दीजिएगा। आई इमीडिएटली चेंज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बात दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। तब हमें समझ आना शुरू हो जाएगा कि सब्जेक्ट बहुत प्यारा है कलर्स का, और बहुत गहरा सब्जेक्ट है। तो आज का दिन हम कलर्स को समझने में लगाने वाले हैं। मैं कुछ स्लाइड्स भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जिसके साथ साथ हम लोग मूव ऑन करेंगे इस सब्जेक्ट को। और आप लोग कहीं ज्यादा रिलेट भी कर पाओगे जब एक कलरफुल स्लाइड या प्रेजेंटेशन को देखोगे। तो आज हम कलर इंटीरियर स्टाइलिंग पर चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ हम क्रोमो वास्तु पर भी बात कर रहे हैं। क्रोमो वास्तु मीन्स हाउ कलर्स एंड वास्तु is linked. तो Audio Jungle. I hope this is visible to everyone. Okay, fair. I'll share again. Okay. So first thing that we let us understand about colors is that colors matters in interiors
Just a second. Just a second. Okay. So colors basically matters in interiors, it matters in our well-being, it matters because it impacts us. It has a very, very deep relationship and it impacts us. We will understand how. I want you to look at this a couple of images and then we will also interact. We will also understand how does it impact our spaces, how does it impacts us. So let us understand, do colors have psychological impact? Do they impact our mind? So that is the first thing, because if they impact us, if they, अगर कलर्स का प्रभाव हम पर है, तभी इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट, लैंडस्केप डिजाइनर्स, वास्तु एक्सपर्ट्स, फैशन डिजाइनर्स, कॉस्मेटिक डिजाइनर्स एक्सपर्ट सब कलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? एक लेडी को जब सजना होता है तो वो पार्लर क्यों जाती है? क्योंकि उसे पता है कि एक एक्सपर्ट है एंड देन एक्सपर्ट नोज कि मेरे चेहरे के हिसाब से कौन से स्ट्रोक्स मेरे चेहरे को उठा सकते हैं। क्या एक इंटीरियर डिजाइनर को पता है कि मुझे कौन से कलर्स लगा के इस स्पेस को की पूरी की पूरी फील उठानी है, इसको बड़ा दिखाना है, इसको स्पेशियस बनाना है, इसको मीनिंगफुल बनाना है, ये मेरे क्लाइंट के मूड को इम्पैक्ट कर सके। तो सबसे पहली चीज तो यही आती है कि यस, कलर्स इम्पैक्ट्स अस। कैसे इम्पैक्ट करते हैं? कलर्स का इम्पैक्ट हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस पर आता है। जो जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं उसके ऊपर कलर का बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है। जो भी कलर हम देखते हैं, अभी हम देखेंगे आगे जाके कि उनकी दे हैव अ डिफरेंट वेवलेंथ्स, and according to the wavelength, when light falls on any wall and we are looking at a wall, the color, the radiation that particularly comes to our eyes basically gets into the brain and stimulates our emotional centers. That is why we react to colors very very differently. और यही वजह है कि हम अलग अलग रूम्स में अलग अलग कलर्स लेते हैं। मैं कुछ कलर्स दिखाता जाऊंगा जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, हम ये दो कलर्स ले रहे हैं। आप अपने रूम में एक डार्क ग्रे ले सकते हो, आप इसके साथ इसका जो नीचे देख पा रहे हो, दिस इज द नोटेशन ऑफ द कलर्स। आप ये ध्यान देना, यहाँ बहुत सारे लोग कलर्स की सेंस रखते हैं। कलर का नाम बहुत जगह वेरी करेगा, इट इज द नोटेशन जिससे नाम आता है। तो ये जिसको हमने डार्क ग्रे लिखा हुआ है, जिसकी HSL नोटेशन आप देख पा रहे हो, ये डिफरेंट इंपैक्ट देता है। अगर सपोज देवांश हैज टू यूज अ कलर इन हिज रूम एंड ही गोज फॉर अ डार्क ग्रे, डार्क ग्रे का अपना एक अलग इंपैक्ट होगा। वेन ही विल लुक एट दिस वॉल ऑफ डार्क ग्रे कलर, इट विल नॉट बी अ वेरी इमोशनल कलर। अब ये क्यों, कैसे हो रहा है कि ये इमोशनल है या नहीं है? ऐसा क्या छिपा हुआ है रंग में कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये मुझे किस चीज को ट्रिगर करेगा? नाउ दिस पर्टिकुलर कलर लाइक डार्क ग्रे विल नॉट इनवोक इमोशंस, इट इज मोर सीरियस कलर। ये कैसा कलर है? सीरियसनेस का कलर है। ये ऐसा कलर है जो आपको थोड़ा रिजर्व करेगा। आप अपने रूम में रहना पसंद करोगे, ज्यादा बाहर जाना, ज्यादा सोशलाइज करना नहीं पसंद करोगे। एक कंजर्वेटिव, एक प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में लाने की कोशिश करोगे और लिमिटेड होके रहने की कोशिश करोगे। हालांकि आप जो रिजर्व्ड बिहेवियर है वो आपका दिखेगा। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम देखते हैं, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, कलर्स इंपैक्ट आवर माइंड, कलर्स इंपैक्ट स्पेसेस। हम अपने ऑफिस में कलर यूज करते हैं, हम अपने घर में कलर्स यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे इंपैक्ट अस। क्या हमारा खाली एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट माई स्पेस शुड ओनली लुक ब्यूटिफुल? नो, I want a color that should impact me, that should make me positive and make my activity more worthwhile. अब दूसरा कलर देखिए, गैम्बोज एक कलर नजर आ रहा है, इसके साथ इसका HSL नोटेशन है। क्योंकि हम लोग कोई भी रंग की अगर बात करते हैं तो नोटेशन की मदद से करते हैं, क्योंकि नाम आपको अलग अलग जगह मिलेंगे। राइट मिस्टर महेंद्रन? फॉर एग्जाम्पल, द कलर दैट आई एम कॉलिंग इज एट गैम्बोज, द नोटेशन, HSL नोटेशन इज 38 degrees, 100%, 50%. You might find somebody else calling it with a slightly different name.
सो नेम्स तो आपको कंपनीज में भी अलग मिलेंगे। एशियन पेंट्स माइट कॉल इट डिफरेंट, ड्यूलेक्स माइट कॉल इट डिफरेंट, एंड जितने अलग अलग कलर की कंपनीज हैं, हो सकता है वो सेम ही कलर को जो आप देख पा रहे हैं उसके नाम अलग अलग हों। तो आप एग्जैक्टली exactly नाम को नहीं पकड़ सकते। आप शेड कार्ड्स उठाइए। अचिंत, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तीन कंपनीज के शेड कार्ड्स उठाना, सेम कलर लेना, आप कहोगे ये कैसा हो सकता है, वहां तो सनफ्लावर येलो बोल रहे हैं, इसमें तो गोल्डन ग्लोरी बोल रहे हैं, वहां इसमें इसको मैरी गोल्ड बोल रहे हैं, सर ये तो सेम ही कलर है। तो द नेम ऑफ द कलर माइट वेरी। तो ऑल द कंपनीज बेसिकली हैव नोटेशंस विच इज देयर ट्रूथ, जिससे कलर का नाम तो वो बाद में रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुनील जी इज विद अस, एंड सुनील जी के घर बाहर तो सब उनको सुनील जी बुलाते हैं, सुनील वर्मा जी बोलते हैं, पर घर में मदर उनको प्यार से कुछ और भी बोल सकती हैं, फादर कुछ और बोल सकते हैं, चाचा कुछ और बोल सकते हैं। अब मैं सरप्राइज होऊंगा कि इनके चाचा ने जब इनको बुलाया कि है ये किसे बुलाया, बोले सर वो चाचा बोलते हैं प्यार से शुरू से। तो वन कलर माइट हैव मल्टीपल नेम्स, यू कांट स्टिक टू द नेम्स। what professionals need to stick is to the notations, because they are born from notations। मैं फिर बोलता हूं, किसी भी रंग का जन्म उसकी नोटेशन से होगा, नाम से नहीं। अब देखिए गैम्बोज जो कलर है, इस कलर के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ ब्राइटनेस है। अगर आप देख पा रहे हैं इस ग्रे को और इस येलो को, यानी इस गैम्बोज में एक ब्राइटनेस है, एक पर्टिकुलर येलोइश ऑरेंजिश टच है। कितने लोग देख पा रहे हैं? शो मी अ थंब साइन कि यस आपको एक ब्राइट कलर नजर आ रहा है। शो मी अ थंब साइन, यस आई कैन सी अ ब्राइट कलर, जस्ट शो योर थंब साइन। ये एक येलोविश कलर दिख रहा है, येलोविश बट थोड़ा सा ऑरेंजिश टच है, वेरी लिटिल ऑरेंजिश टच, बट इट इज येलोविश ऑरेंज, प्राइमरली येलो, बट इट हैज लेवल ऑफ ब्राइटनेस एंड नीदर इट इज डार्क और लाइट। ऐसा कलर कॉन्फिडेंस उठाना शुरू कर देगा। योर कॉन्फिडेंस विल स्लाइटली इंक्रीज बिकॉज दिस कलर हैज अ वाइब्रेंट एनर्जी। कैसी एनर्जी है? बहुत वाइब्रेंट एनर्जी है, बहुत गजब एनर्जी है। ये आपका कॉन्फिडेंस भी उठाएगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक बना देगा। अब सोचो कि यहां पर कि अगर हम किसी एक बंदे का घर कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर लेट्स टेक एग्जांपल कि राजेश जी किसी के घर जाते हैं, वो कहते हैं कि साहब मेरा बेटा जो है डिप्रेशन में आया हुआ है। और हमने सोचा कि डिप्रेशन में आया हुआ, अच्छा तो कोई भी कलर आप कर लीजिए, उनका आजकल ग्रे बहुत चल रहा है, कैन बी टेक डार्क ग्रे इन हिज रूम। आपने कहा हाँ बहुत बढ़िया रहेगा। आपको नहीं पता कि जो कलर आपने डार्क ग्रे उसको दिया है, जो बच्चा डिप्रेशन में, इसकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम और बढ़ेगी और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसे और नॉन इमोशनल और रिजर्व्ड और कंजर्वेटिव बना देगा। तब कि जैसे ही हम उसके रूम में गैम्बोज कलर लेंगे, सारे ऑरेंजेस मदद नहीं करते, सारे येलोज भी मदद नहीं करते, बट हमने जैसे ही गैम्बोज लिया तो हम रियलाइज करेंगे वो लड़के में एक होप, एक ऑप्टिमिज्म आनी शुरू हो जाएगी, एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ कलर्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। एक बार आगे बात करते हैं कि यहां पर शालिनी इज देयर, शालिनी कुमारी। शालिनी आप बताओ, आप अनम्यूट करो, बताओ आपका फेवरेट कलर क्या है? हाँ जी। या ब्लू। हाँ जी। ब्लू कलर। अच्छा, कैसा ब्लू पसंद करते हो शालिनी, लाइट या डार्क? डार्क। डार्क ब्लू। डार्क ब्लू। जो ब्लू को देख रॉयल के ब्लू होता कैसी है। फीलिंग आती है शालिनी आपको? अच्छा लगता है वो कलर। क्या रिलैक्स्ड फीलिंग आती है? हाँ। बहुत हल्की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जैसे शांति सी है। हम्म। और अगर मैं आपको कोई ऐसा कलर दे दूं जो कि बहुत ज्यादा रेडिश हो, बहुत ज्यादा रेडिश हो, मे बी कुछ ऐसा, आपको वो उसको कैसी फीलिंग दे रहा है ये? अच्छा लगेगा ये भी हल्का, मतलब उतना ज्यादा नहीं फ्लो करेगा नहीं, जितना फीलिंग वो वाला कैसी कलर। आएगी, मतलब ब्लू की एक फीलिंग अलग है, इसकी कैसी फीलिंग आ रही है? वैसे मुझे इसकी भी कहना अच्छी नहीं कि आप, आएगी। हम देवांश दिख रहा है, इट्स अ गुड एग्जांपल, मैंने जो कलर दिखा है वो देवांश पहन के बैठा हुआ है। तो आप ये बताओ कि ये कैसी फीलिंग दे रहा है, कोई वर्ड जो आपके मन अच्छा में आ रहा है नहीं। कि सर मुझे ऐसा लग रहा है इसे देख के। अच्छा है ऐसे। ओके, अच्छा लग रहा है, अच्छा मतलब जैसे ब्लू में आपको पीस महसूस होती है, पीसफुलनेस, यहां पर एनर्जी लग रही है थोड़ी सी। हम्म। तो ये जो डिफरेंशिएटेड एनर्जी है ये कैसे आती है, ये कैसे जनरेट होती है, व्हाट इज द रूट, हाउ डज इट कम फ्रॉम, वेयर डज इट कम फ्रॉम, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स अस अंडरस्टैंड रंग पैदा कहां से हो रहे हैं।
रंग जो हैं वो पैदा कहाँ से हो रहे हैं, यही तो सारा का सारा जो फंडा है वो यही है कि रंग पैदा कहाँ से हो रहे हैं और इनकी जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, इनके जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो आ कहाँ से रहे हैं। ये अब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। आप वापस म्यूट कर लो डियर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ और इमेजेस दिखाऊंगा और उन इमेजेस की मदद से हम फिर से अभी आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आप म्यूट करो अपने आप को। और कोई, बीना जी आप बताइए आपका कोई फेवरेट कलर, अनम्यूट कीजिए। यस सर, एक मिनट। हाँ सर, मेरा तो पिंक और वाइट। यू लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक एंड व्हाइट। यस सर। ओके, और ऐसा क्यों, पिंक एंड व्हाइट क्यों बहुत अच्छा लगता है आपको। सर वाइट बहुत कूल लगता है, उसको पहन के एक बहुत खुशी फील होती है, मतलब एक बड़ा कॉन्फिडेंस सा फील होता है। और पिंक कलर जो है सर, वो मुझे कलर बहुत पसंद है, उसके साथ मिल जाता है तो ये कलर उठ के आ जाता है। ओके, बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने आप में कंप्लीट हो गया ये। बिल्कुल ठीक है। अब मैं ऑप्शन हाँ देता जी। हूं, आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा पिंक चलेगा। आ, सर राइट वाला तो शटल है, जो आपके लेफ्ट में है वो शटल है, और ये वाला पिंक है ना सर, ये बहुत सुंदर पिंक है। ओके, ऐसा राइट क्यों, वाला आपको ये वाला अच्छा लग रहा है सर, ये सटल है, मतलब ये एक फील या देता ये है कि अच्छा लग आदमी। रहा है। मैं, हाँ ये वाला मैं कह रही हूँ, ज्यादा अच्छा लग रहा है ये पर वाला। दोनों पिंक है, क्या डिफरेंस दोनों है पिंक दोनों है में। सर, एक को पहन के एक अलग फील आती है, एक को पहन के एक अलग फील आती है। यानी कि कहीं ना कहीं आपने कलर फैमिली तो चूज कर ली पिंक, जी। लेकिन आप अंदर से आपको नहीं पता, पर सच्चाई ये कि आप उसकी ब्राइटनेस हाँ। आपको पकड़ रही है। अब हम बात करेंगे, ये। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ, व्हाट ब्राइटनेस मीन्स टू अस, व्हाट जी लाइटनेस मीन्स टू अस। अच्छा बीना जी, मेरा एक और सवाल है, इन दोनों में से आपको लाइट पिंक कौन सा लग रहा है और डार्क कौन सा लग रहा है। सर, आपके जो लेफ्ट हैंड में है वो लाइट पिंक है, और जो आपके वंडरफुल। राइट में। देखिए बीना जी, वैसे भी स्पेक्स लगा के हमारी और क्लैरिटी बढ़ जाती है, और ये तो बिना स्पेक्स के भी दिख रही है, लाइट एंड डार्क हमें बहुत अच्छे से लग रहा है कि ये लाइट है। जी जी यानी सर। कि हमें ये भी अब पता चलना शुरू हो गया, रंगों की दुनिया में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अदर देन चूजिंग द कलर इज द लाइटनेस एंड डार्कनेस, द ब्राइटनेस एंड डलनेस। ये उसके रेगुलेटर्स होंगे जो कलर स्कीम्स में हमें मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं बीना जी को ये जो कलर की डिसेंसी इसलिए अच्छी लग रही क्योंकि ये लाइट है, बट इसकी ब्यूटी इसलिए अच्छी लग रही क्योंकि ये ब्राइट है। अच्छा, हर एक का पर्पस है बीना जी। यस सर। अगर आप किसी को आंख बंद करके बोलती है सर आप अपने कमरे में पिंक ले लीजिए, ऐसा भी हो सकता है किस दिन आपको झटका लग जाए कि हाँ, हमने पिंक को बोला था, इन्होंने ये ले लिया। See, you did not specify the हाँ। notation of the color. यस। Beena यस ji सर। had no idea कि the client can go for this kind of a pink. ओहो। Maybe she wanted this kind of a pink. This is यस also सर, pink, यस सर, right? यस सर, This is यस सर। also pink. उन्होंने कहा मैडम आपने तो मुझे बताया नहीं कौन सा पिंक लेना. You said go for pink. I've taken pink. ओके सर, But पिंक the के तो energy इतने level शेड्स is हैं। different. Can you see difference of energy? यस सर। बहुत ये। डिफरेंस आ रहा है। कितने लोगों को ये दोनों पिंक में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस महसूस हो रहा है। शो मी अ थंब साइन। Okay, very good, very good, very good. Almost everybody who's opened their videos. Dangerous है if you don't understand what you have to give to your client and what the client needs. ये हमें नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो सकती है। आमतौर पर हम लोग जेनरिक बातें करते हैं। आप म्यूट म्यूट मैं आपको कर देता हूं वापस। ठीक है बीना जी, थैंक यू। आगे मूव ऑन करते हैं। हम लोग कलर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कलर्स हमें प्रभावित करते हैं, और कलर्स की दुनिया जो है वो बहुत अनयूजुअल है। Saroj ma'am, please, if you wanted to say something, please add. Thank you, sir. It is okay for us or good for us. Please open your camera. जो लोग अपने cameras open कर सकते हैं, so that we can see your lovely and beautiful faces and beautiful smile also. Please open your camera. It's my humble request, so that session will be interactive also. Thank you. Thank you, sir. In any case, I will only interact with those people who have their videos open. ठीक है, ओके। एक एग्जांपल और लेते जाते हैं। मूड, क्या मूड इंपैक्ट होता है लोगों का, कलर्स इंपैक्ट करते हैं उनके मूड को। यस, सर्टेनली यस। आप देख रहे हैं लड़की कितनी सैड दिख रही है, ये हैप्पी दिख रही है, ये कलर का कमाल भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कलर का कमाल ही हो सकता है, बट इट कुड बी एन इम्पैक्ट ऑफ कलर्स ऑल्सो विच कैन मेक यू वेरी हैप्पी, रेज योर एनर्जी।
And if the color is dull, your mood, your energy will go down. ये किस पर डिपेंड करता है? निश्चित तौर पर कलर्स पर डिपेंड करता है। इतने सारे कलर्स हैं, उसमें से हम क्या पिक करेंगे, क्लाइंट को क्या देंगे, उसकी एनर्जी कैसे उठाएंगे और उसके मूड को कैसे इंप्रूव करेंगे, दिस इज द ट्रिक। Right colors can enhance mood and promote positive energy in the space. All those who are writing must write at least few sentences, because आपके पास एक अच्छा टेक अवे होना चाहिए when you go back, कि अगर आपने सही कलर का इस्तेमाल कर लिया, then you can enhance the mood. You can help person who is little dull and little negative or pessimistic, तो आप उसकी एनर्जी को उठा सकते हो, पॉजिटिविटी भर सकते हो, एनर्जी भर सकते हो, इवन फिजिकल एनर्जी भर सकते हो। ये बहुत मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? मूड की बात कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमें शालिनी ने बोला कि सर मेरे को ब्लू पसंद है। शालिनी, ये दोनों ही ब्लू की फैमिली के कलर हैं, बट एक डार्क ब्लू है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा मेरीन, और एक बहुत लाइट ब्लू है, थोड़ा सियान की तरफ का, ठीक है, या फिर सियान ही कह सकते हैं, या कुछ लोग सायन कहते हैं। अल्ट्रा मरीन जो है, ये कलर जो है वो 248 डिग्रीज 100% 30% का कलर है। दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर कलर। ऑब्वियसली यू कैन सी इट इज ब्लू, बट इट इज अ डार्क एंड अ डीप ब्लू। इस ब्लू के अंदर अगर आपने, अब एग्जांपल लेते हैं, शालिनी कहती है कि सर मैं ना बेडरूम में ब्लू लूंगी। हम ब्लू दे सकते हैं शालिनी को, निश्चित तौर पर दे सकते हैं, लेकिन कोई भी ब्लू नहीं दे सकते। देर आर कपल ऑफ ब्लूज लाइक अल्ट्रामरीन, जो अगर कमरे में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो आपको बहुत इंट्रोस्पेक्टिव बना देगा, आपको क्वाइट बना देगा, और आपकी ड्रीम्स बढ़ने लगेंगे। I am again repeating the same thing in English. If this color like ultramarine is used in bedroom, you will become quieter, introspective, silent but calm, very patient. But your dreams will also increase because it is very introspective color. Now I would think and then see. Generally we do not give this kind of color in bedroom, or if it is given, it is used through objects. It is used through furnishings, it is used through the furnitures, it is given through the paintings, but not directly on the wall. ये कलर आपको रिजर्व करेगा, रिजर्व्ड एटीट्यूड लाता जाएगा, क्वाइट, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं, आप अपनी बात पर स्ट्रांग रहोगे। और तब की एक दूसरा ब्लू आता है, हम बात मूड की कर रहे हैं, ये बहुत डिफरेंट ब्लू है। और शालिनी, आप सोच सकते हो कितने तरीके के ब्लूज होते हैं, बहुत सारे। साइन क्या करता है? 180 डिग्रीज पर कलर है, रेड के एकदम ऑपोजिट ये कलर आता है, और ये बिल्कुल ओपन अप करता है आपके कम्युनिकेशन को। Whenever we have to improve the communication, effective communication करना है, तो हमें क्या चाहिए? साइन। दैट इज वाई लिविंग रूम्स में हम साइन का इस्तेमाल करते हैं। आगे मैं वास्तु पर भी बात करूंगा। ये कलर हम नॉर्थ में बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, ये आपके कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कर सकता है। तो जब इंटीरियर डिजाइनर्स कलर चूज करते हैं लिविंग रूम के लिए, तो वो लोग जनरली जो ट्रेंडी कलर्स होते हैं, ऑल दैट विच इज इन द मार्केट राइट नाउ, विच इज वेरी कॉमन एंड गोइंग ऑन, दे चूज दोज कलर्स। आई वुड से डोंट गो बाय व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन पीपल आर यूजिंग। टॉक टू योर क्लाइंट, ask what is their problems, then according to the issues, according to the room and the purpose of the room, choose colors. तो रंग आप जो भी लेने वाले हैं, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि किस पर्पस से हम ये कलर ले रहे हैं, किसके लिए कलर ले रहे हैं, क्या परेशानी है, तब हम एक फैमिली तक जाएंगे, तब हम एक नोटेशन तक जाएंगे। साइन क्या कर सकता है? आपके कम्युनिकेशन को खोल सकता है, आपको इजी गोइंग कर सकता है, आप अपनी बात बिना किसी भय के, चिंता के रखने लगोगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट से बात करोगे, और ज्यादा हैप्पी और लाइट फील करोगे, ज्यादा हैप्पी और हल्का फील करोगे। इन दोनों कलर्स की एनर्जी में डिफरेंस पता चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। अल्ट्रा मरीन अपने आप में स्ट्रॉन्ग कलर है, अल्ट्रा मरीन पावरफुल कलर है, पर उसका अपना एक एडवांटेज है, अपना एक डिसएडवांटेज है। साइन अपने आप में एक एडवांटेज है, उसका एक डिसएडवांटेज है। हम जैसे जब भी दो कलर्स को समझते हैं, ये देखते हैं इनकी एनर्जी डिफरेंट है, ये हमारे मूड को इंपैक्ट करेंगे, और मूड अच्छा होगा तभी तो वो काम अच्छा होगा। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो काम हम करने बैठे हैं, जिस कमरे में हम करने बैठे हैं, उसमें वो काम हम अच्छे से कर सकें। इफ वॉट एवर वर्क, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन माई लिविंग रूम, आई एम विद माई फैमिली, माई ऑब्जेक्टिव इज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, speak and listen.
So that purpose should be achieved. How would that be achieved? By understanding from the family what color exactly at the degree can help. I'm just trying to give you a little idea of how the colors work. Okay, now let's again get back and understand. I am meeting Ria again tomorrow one. Yesterday we had already met. Ria, बताओ तुम्हारे रूम में कौन सा कलर है? I am unmuting you. अनम्यूट करो. हाँ. वाइट है बस। अच्छा, मुझे तो पीछे एक और भी नजर आ रहा है. वो कर्टन का कलर है। ओके, तो ये कलर खाली पूरे में वाइट है? हाँ। क्या ये तुम्हारा बेस्ट कलर है रिया? फेवरेट, या नहीं, ये करा लिया क्योंकि आजकल वाइट बहुत चल रहा है? हॉस्टल का कलर वाइट है। अच्छा, ये बोलोगे मेरे पास सर ऑप्शन नहीं था कोई भी. अगर तुम्हें चॉइस देते रिया तो तुम कौन सा कलर प्रेफर करती? मैं तो मल्टीपल कलर करवाती, मतलब पिंक कलर का, मतलब 2-3 शेड। 2-3 शेड. अभी व्हाइट में कैसी फीलिंग आती है? पीस, मतलब अच्छा लगता है, मतलब। बट अगर आप चेंज करना चाहते तो क्या कलर लेते? आपने पिंक बोला. लाइट पिंक, और फिर पिंक के 2-3 शेड में। 2-3 कोई से अलग अलग. अब देखो, जो बीना जी को मैंने पिंक्स दिखाए थे उसमें से आपको क्या ब्राइट पिंक चाहिए था या लाइट पिंक चाहिए था? मेरे को तो पिंक के सारे शेड्स पसंद है, डार्क भी ओके, और लाइट ओके, भी। ओके. वंडरफुल. बबीता, आप अनम्यूट करो. आप बताओ मुझे कि आपका रूम में कौन सा कलर है? सर लेवेंडर। ओह. एंड इज इट योर चॉइस और समवन एल्स चॉइस? सर माय चॉइस। क्या आप इस कलर के साथ कनेक्ट कर पाते हो? क्या गुड फील फैक्टर आता है आपको लैवेंडर यस से? सर, यस सर, कैसी पीस फीलिंग मिलता है। आती है? सर पीस, हैप्पी। वेरी गुड. क्या आप इस बात से कनेक्ट करते हो कि कलर्स हमें इम्पैक्ट करते हैं, हमारी एनर्जी को यस, उठाने में, गिराने में उनका कंट्रीब्यूशन है? यस सर। वंडरफुल. थैंक यू सो मच. म्यूट थैंक योरसेल्फ. यू सर। म्यूट योरसेल्फ. म्यूट योरसेल्फ. नाउ लेट अस गो बैक एंड अंडरस्टैंड. आई एम, और जो लोग नए हैं, बहुत सारे लोग पहली बार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं. आप लोग कलर्स के नाम नोट करो, उनकी नोटेशंस नोट करो. HSL नोटेशन में करके दिखाऊंगा आपको वो कैसे काम करता है. और चाहे मैं अभी एक एक काम करता हूँ, मैं अभी शो करता हूँ आपको. देवांश एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल who are interior designers, Tanishka and Ria, and a lot of people are there. You have to see what I am doing. ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं करके the same concept. I am sharing that platform. आप ध्यान से देखना कि कैसे हम ये काम करते हैं. ठीक है, मैंने एक प्लेटफॉर्म खोल रखा है. इज इट विजिबल टू एवरीवन? बीना जी, शो मी अ थंब साइन. HSL कैलकुलेटर दिख रहा है? यस. ओके, रिया देखो, ये कलर रेड नजर आ रहा है. शो मी अ थंब साइन. ठीक है, तो ये रेड जो है ये एच इज ह्यू, जो रंग की फैमिली है. जैसे ही मैं कलर के अंदर डिग्रीज चेंज करूंगा, ये कलर की फैमिली चेंज होती जाएगी. अब रेड से हम धीरे धीरे ऑरेंज की तरफ जाएंगे. तो जो कलर व्हील गोल होती है उसके अंदर धीरे धीरे रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से लेमन, लेमन से ग्रीन, ग्रीन से फिर सियान, सियान से अगेन ब्लूज, ब्लूज से पर्पल्स, पर्पल से मैजेंटा एंड देन रेड अगेन. है ना? तो देखो आप यहां से हम डिग्रीज चेंज कर रहे हैं. क्या ऑरेंज नजर आ रहा है? कैन यू सी द चेंजिंग ऑरेंज? यस. ये ह्यू है. हर डिग्री पे एक नया रंग आता है, हर डिग्री पे एक नया रंग आता है और उसका अपना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है. ठीक है, यहां पर हम किसी एक जने की हेल्प लेंगे. लेट अस गेट इन टच विद समवन. ओके, दिया, आप अनम्यूट करो अपने आप को और कोई सा भी कलर बताओ विच यू लाइक. सर पिंक। पिंक. ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं दिया, वापस आऊंगा. फिर मैं सबको बस जर्नी दिखा रहा हूं. रेड पे वापस आना पड़ेगा. हम मजेंटा से भी पिंक बना सकेंगे और रेड से भी. देखते हैं आपको कौन सा पिंक पसंद है. ये क्या देख रहे हैं हम? जैसे जैसे हम हर डिग्री पे, एट एवरी डिग्री वी आर मूविंग, दे वी आर गेटिंग अ डिफरेंट कलर. एंड देवांश, दे हैव अ डिफरेंट साइकोलॉजी, दे हैव अ डिफरेंट साइकोलॉजी. हर कलर अलग है. ठीक है, तो हम ये धीरे 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 मूव करते जा रहे हैं. अब दिया, आप एक्टिव रहना मेरे साथ. धीरे धीरे देखो, ब्लूज से हम पर्पल्स की तरह, भी तो ब्लू इंटेंस होते जाएंगे एंड देन वी विल स्लोली मूव टू द पर्पल्स. ट्राई करते हैं पर्पल या मजेंटा से एक पिंक बनाने की. वी विल ट्राई टू मेक अ पिंक फ्रॉम मजेंटा. दिया इज विद अस. दिया, यहां पे मैं रुक रहा हूं. आप मुझे बताना कि इस तरीके के पिंक अच्छे लग रहे हैं. अभी ये जो भी कलर है
आई विल ट्राई टू मेक इट लाइट। ठीक है, अब मैं एच के बाद एल, एल मीन्स लाइटनेस चेंज कर रहा हूं। दीज आर द रेगुलेटर्स। जैसे जैसे मैं परसेंटेज ऑफ लाइटनेस चेंज कर रहा हूं, यू सी द कलर इज बिकमिंग लाइटर। दिया आपको मुझे बोलना है सर ये ठीक लग रहा है, या तो हम डिग्री चेंज करेंगे, या हम लाइटनेस चेंज करेंगे, Yes, या हम ब्राइटनेस चेंज करेंगे। sir, ये वाला. ठीक लग रहा है दिया? Yes, sir. अच्छा, डू यू वांट मी टू इंक्रीज द ब्राइटनेस? अभी 81% ब्राइटनेस है, आई कैन इंक्रीज ब्राइटनेस ऑफ दिस कलर। आप देखना यही पिंक अब ब्राइट होता जाएगा। आप क्या इसे और थोड़ा ब्राइट होते देख रहे हो दिया? Yes, sir. यू वांट इट टू बी ब्राइटर और स्लाइटली डल? So slightly dull. ओके, अब 99% था, आई एम रिड्यूसिंग द ब्राइटनेस। आप मुझे बोलना सर यहां हम रुक सकते हैं? Yes, sir. अभी देखो HSL कैलकुलेटर में, HSL इज अ नोटेशन। जो पर्टिकुलरली कलर दिया ने चूज किया है वो 303 डिग्रीज पे कलर है। H, S is 84%, L is 81%. That means it is a magenta which is quite bright and very light. So this is how we basically land up to the colors. And ये notations है जो उनका truth है। That means every color is basically a composition of hue, value and chroma. नाम उसके बाद में डलते हैं। अब जो ये दिया ने कलर चूज किया, इसका हो सकता है कुछ साल बाद नाम पड़ जाए दिया पिंक, और सब कहेंगे हम लोग तो वी लाइक, आई लाइक दिया पिंक, नो नो आई लाइक लिटिल डार्कर दिया पिंक, और दिया को लगे है मेरे नाम से इतना कलर फेमस हो गया। तो आपको पता है ये जो वर्मिलियन है, जो पिस्टैच्यू है, बहुत सारे कलर इंडिया से ओरिजिन हुए। पिस्टैच्यू होता है पिस्ते का रंग, जिसको हिंदी में यहाँ बोलते हैं पिस्ता ग्रीन, अंग्रेज में वहां बोलते हैं पिस्टैच्यू। ऐसे ही कई सारे नाम हैं जिनका इंडियन ओरिजिन है, और कई सारे ऐसे नाम हैं जिनका फॉरेन से, जैसे हार्ले क्वीन, दैट हैज कम फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। So let us move back. So colors have an impact on us. They are basically affecting us. This is what we are trying to understand by the impact, basically mood we were seeing, है ना? आगे बढ़ते जाते हैं। Okay, ये कलर को देखते हैं। We generally, people come to us, especially when it is about a bedroom, they want a color. There can be many options for romance. It also depends upon their liking. What do they like? What do they resonate with? लेकिन तब भी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सैल्मन एक बहुत ब्यूटीफुल कलर है, ये कंप्लीटली पिंक नहीं है। आपको ये पिंक लग रहा हो सकता है, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट पिंक। ये थोड़ा सा ऑरेंजिश पिंकिश कलर है, वेरी स्लाइट ऑरेंजिश टच, मोर टुवर्ड्स रेड, क्योंकि 8 डिग्रीज से बन रहा है। 8 डिग्रीज मतलब ऑरेंज एंड रेड के बीच का कलर है। इट इज वेरी हाईली सैचुरेटेड एंड लाइट ऑल्सो, नॉट वेरी लाइट। HSL के अंदर हम इसको कलर, इसको सैल्मन कहते हैं। सैल्मन जो है वो एक सॉफ्ट रोमांटिक फीलिंग ऐड करता है बेडरूम में, a very soft romantic feeling, little playfulness and lot of love and admiration, whether it is self admiration or admiration about others. जब भी हम कोई सही कलर का इस्तेमाल किसी स्पेस में करते हैं तो लोगों को वो एक्टिविटी करनी इजी होती है। जो भी एक्टिविटी, स्लीप हो, स्टडी हो, रोमांस हो, मस्ती जॉय हो, पार्टिंग हो। और अगर आप कोई गलत कलर ले लेते हो, या कलर बहुत डार्क ले लेते हो, कलर बहुत ओवर ब्राइट ले लेते हो, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप कलर गलत नोटेशन चूज करते हो तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर हम आगे फास्ट बढ़ना शुरू करेंगे। यहां पर हम देख सकते हैं बंदा बड़े चैन से सो रहा है। अब दो ऑप्शन देखते हैं। तनिष्का, आपकी हेल्प की जरूरत है। यहां पर ओलिव नजर आ रहा है और एक ल्यूसियन पिस्टैच्यू नजर आ रहा है। ल्यूसेंट पे, इन दोनों में से अगर मैं आपको बोलूंगा, एक मिनट आप अनम्यूट कर पाओगे? आपको एक मिनट अनम्यूट करते हैं। क्या लगता है कि अगर क्लाइंट को देंगे, कौन सा कलर हमारे लिए ज्यादा लगता है कि हम क्लाइंट को दे सकते हैं? Sir, I guess lucent pistachio, according to me, is more bright. I would go for olive. ओके, क्लाइंट को हम क्या देना चाहेंगे स्लीप के लिए, अगर स्लीप का इशू है तो? अच्छा, for sleep, lucent हाँ। pistachio. और वो क्यों दे रहे हैं? बिकॉज वो सॉफ्ट कलर है। Relaxing.
हाँ जी। यस, देखो हर कलर में गुड एंड बैड है, देर इज नो गुड और बैड कलर। पर्पस इंपॉर्टेंट है, हमारा ऑब्जेक्टिव इज स्लीप हियर, राइट तनिष्का? और अगर मैं स्लीप चाहता हूं तो मैं थोड़ा लाइट लूंगा। अगर आप इन दोनों का HSL में L देखोगे तनिष्का, तो आप देखोगे ऑलिव लाइट नहीं है, ऑलिव एक डार्क कलर है, बहुत लाइट नहीं है। तब की ल्यूसेंट पिस्टैच्यू कैसा कलर है? एक लाइट कलर। क्या हम देख सकते हैं प्रिया, क्या हम देख सकते हैं ल्यूसेंट पिस्टैच्यू? थंब साइन दिखाओ, लाइट कलर कौन सा है, ऑलिव या ल्यूसेंट पिस्टैच्यू? क्या आप देख पा रहे हो प्रिया की ल्यूसेंट पिस्टैच्यू एक लाइट कलर है? थंब दिखाओ, बस थंब साइन प्रिया। या तो हम स्लीप के लिए ऐसा कलर देना चाहते हैं जो उसको रिलैक्स करे। क्या करे? रिलैक्स करे, थोड़ा सा हल्की फीलिंग दे, लाइट फीलिंग दे। ऑलिव अपने आप में एक येलो की फैमिली से बना हुआ ग्रीनिश कलर है। इट इज अ कलर दैट हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम द फैमिली ऑफ येलो, और वो डार्क होने के बाद ऑलिव जैसा कलर बन जाता है। और ये आपको पता है कि ऑलिव कलर कभी भी डिप्रेशन के पेशेंट्स को नहीं देते। ये आपके अंदर बहुत पॉजिटिव फीलिंग नहीं लाएगा, लैक ऑफ लव लाएगा, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ लाएगा, मिस्टिक माइंड कर देगा। स्लीप के लिए ऑलिव अवॉइड करते हैं हम लोग। तो ये समझने का प्रयास करते हैं कि रंगों की दुनिया हमें इंपैक्ट करती है, फिजिकल वेलबींग में भी करती है, फिजिकलिटी में भी करती है। जैसा ग्रीन कलर है वो कई तरीके की बीमारियों में हमें मदद करता है, कई तरीके की चीजों में। जैसे वो जर्मिसाइड है, बैक्टीरियासाइड है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। एक पर्टिकुलर, अगर हम ध्यान से देखें तो एक पर्टिकुलर 500 से 570 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ है, जिसकी वजह से उसकी कुछ खास कैरेक्टर्स है। साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करने में भी कुछ खास कैरेक्टर है, और हमें फिजियोलॉजिकली इंपैक्ट करने में भी ग्रीन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कलर, बिकॉज इट नॉट जस्ट ओनली इंपैक्ट्स द माइंड, इट ऑल्सो इंपैक्ट्स द बॉडी। I am sharing presentation because I want you to look at the colors. I want you to keep them in your mind. Okay, I'm talking about green. Okay, I'm talking about green. Green हमने बहुत बार देखा है, बट ग्रीन कितना डीपर इंपैक्ट दे सकता है, मैं वो चाहता हूं वो हमें फील हो, हर बार ये बात समझ आए। तो इनकी अपनी एक फिजियोलॉजी भी है कलर्स की, और ये बहुत स्ट्रांगली, तो आप ये बात नोट करो, कलर इफेक्ट्स बॉडी, माइंड, बिल्डिंग एंड इट्स एनवायरमेंट। It's not just a normal thing, it is powerful tool. I'm again repeating, कलर कोई सामान्य चीज नहीं है, वो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी बिल्डिंग को, आपके एनवायरमेंट को बहुत स्ट्रांगली इंपैक्ट कर सकती है। ये मैं बता चुका, ह्यू वैल्यू क्रोमा, ये कलर का बेसिक है। कलर क्या होता है? कलर इज अ रेडिएंट ल्यूमिनस एनर्जी। कलर क्या है? एक रेडिएंट ल्यूमिनस एनर्जी। जैसे ही रिया अपने रूम को पिंक कलर में पेंट करती हैं, व्हाइट कलर की जो फीलिंग थी वो एक अलग फीलिंग थी, उसका एक अलग मजा था रिया, राइट? और पिंक कलर का एक अलग फील होगा, एक अलग मजा होगा। तो आप जैसे भी एनर्जी को एक पेंट ही करते हो, तो भी आप एक डिफरेंट ल्यूमिनस, जो व्हाइट लाइट की जगह पिंक पूरी एनवायरमेंट हो जाएगा। द होल फील फैक्टर चेंजेस, द होल फील फैक्टर चेंजेस। रिया ने कहा हॉस्टल में है ही वाइट सर, करेगा अपना, नहीं बस चल रहा, लेकिन अगर रिया का बस चलता तो अपना पर्टिकुलर पिंक ढूंढती, और एटलीस्ट एक वॉल पे लेती जहां उसे लगता हो वाव। और पता है रिया, जो लोग लविंग होते हैं, लवेबल होते हैं, दूसरों की कद्र करते हैं, इमोशनल होते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं, उन्हें पिंक बहुत पसंद होता है। दे आर सेंसिटिव टू देयर इमोशंस एंड ऑल्सो अदर्स। वो दूसरों की भी कदर करते हैं, और जनरली सॉफ्ट, सेंसिटिव, लविंग पीपल हैव लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पिंक अराउंड देम। हम कलर से दूसरों का इशारा समझ भी सकते हैं कि कौन किस टेम्परामेंट का है। अब ये ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, ये कलर व्हील है जिसके अंदर हर डिग्री पर अलग 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 कलर है। हर कलर एक डिग्री पर है और उसकी अपनी एक दुनिया है, उसका अपना एक इम्पैक्ट है। जब हम एक बार कलर को पिक करते हैं, उसके बाद उसे लाइट और डार्क करते हैं, उसे डल और ब्राइट करते हैं, तब हमारे पास एक पर्टिकुलर कलर आता है जिसको हम फिर इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। वेवलेंथ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कलर वेवलेंथ्स का पता नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता वो साइकोलॉजिकली हमें कैसे इंपैक्ट करने वाली है। एडिटिव, देखिए दो कलर्स होते हैं, सब्ट्रैक्टिव कलर्स जो कि
सारे बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स हैं इस समय हमारे साथ, तो वो लोग जो भी वॉलपेपर यूज करते हैं, दीवार पे पेंट यूज करते हैं, फर्निशिंग्स में, फर्नीचर्स के ऊपर कोई कपड़ा यूज करते हैं, सब सब्ट्रैक्टिव है। सब्ट्रैक्टिव मतलब पिगमेंटेड, यानी क्लॉथ हुआ, पेंट हुआ, ये सब क्या है, पिगमेंटेड कलर्स है, इन्हें क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्टिव कलर्स। और जो कलर्ड लाइट्स होती हैं उसे बोलते हैं एडिटिव कलर्स। तो ये देखिए ध्यान से, यहां पर जो कलर व्हील दिख रही है वो एडिटिव की कलर व्हील है। यहां पर किसकी कलर व्हील है, एडिटिव की कलर व्हील है। और एडिटिव की कलर व्हील की कलर थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो उसके अंदर जो उसके प्राइमरीज हैं, सेकेंडरीज हैं, टेरिशरीज हैं, वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। इसलिए जब आप दीवार पर कोई कलर लेते हो और लाइट डालते हो तब इंटरेक्शन पे कंफ्यूजन आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। देवांश, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? तो मैं ले सकता हूं क्वेश्चन आपका, अदरवाइज आई टेक ऑल योर क्वेरीज इन द एंड। आप लोग अपना क्वेश्चन लिखते जाओ, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक ऑल द डाउट्स बाय एंड। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कलर फैमिली चूज करना, कि कोई भी कलर फैमिली, जैसे ब्लू कह दिया किसी ने, अब ब्लू में कौन सा, जैसे दो लोगों ने पिंक कहा, बीना जी ने पिंक कहा, रिया ने पिंक कहा। अब मैंने बीना जी को सरप्राइज कर दिया कि दो बड़े डिफरेंट टाइप के कलर सामने रख दिए, इसमें से कौन सा लेना है। तो पहले फैमिली लेते हैं, फैमिली के बाद नोटेशन की मदद से एक पर्टिकुलर कलर तक पहुंचते हैं। इसके पीछे दिमाग लड़ाते हैं कि यही कलर व्हील से कलर क्यों पिक करा, इसे कितना लाइट एंड डार्क रखना है, कितना ब्राइट। क्योंकि ये ध्यान रखना तनिष्का, अगर किसी कमरे में लाइट बहुत कम है तो आपको कलर को लाइट रखना होगा। तो हम लाइट लेवल्स चेक करेंगे उस रूम का, और लक्स के अकॉर्डिंग हम उस कलर को लाइटनेस बढ़ा देंगे। 400 लक्स है तो कितनी लाइटनेस होगी HSL में, वो ध्यान से देखेंगे। तो आपको बता देता हूं, ड्यूलिक्स क्या, एशियन पेंट्स क्या, किसी भी जगह पे अगर तुम उनसे बोलना कि लाइटनेस कैसे डिफाइन करते हैं तो आपको तुक्के बताएंगे। और आप उन्हें बताओगे मेरे पास लक्स मीटर है और आई कैन चेक द लेवल्स ऑफ लाइट, लक्स लेवल, तो आप उनको सरप्राइज करोगे कि हाउ यू बेसिकली सी द लाइट लेवल, एंड अकॉर्डिंगली आप कलर को कितना लाइट करना है, कितना डार्क करना है, ये डिसाइड करते हो। आपको लगता है कोई एक बंदा बहुत ही डल और रोम दो मुंह वाला है, तो भाई इसको तो कलर थोड़ा ब्राइट दो, तो आप क्या करते हो, उस कलर की ब्राइटनेस बढ़ाते जाते हो। और आपको लगता है ये बहुत ओवर एक्साइटेड बंदा है, भाई इसकी एनर्जी डाउन करने, तो आप उसको कलर को डलनेस देते हो। आपने देखा कितना आसान था। मैंने जो प्लेटफॉर्म खोला था उससे हम लाइटनेस डार्कनेस चेंज कर रहे थे। आई जनरली I generally ask all my students to be playful with colors. सो कलर नोटेशन के बाद आप उस नाम तक पहुंचते हो कि मुझे गैम्बोज देना है या मुझे एम्बर देना है, और फिर कलर स्कीम्स प्लान करते हो। कलर स्कीम्स अपने आप में एक बेहतरीन तरीका है जिससे कलर्स का आप जोड़ बैठाते हो। कि आपने मोनोक्रोमैटिक लिया या स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री लिया या फिर ट्राइडिक लिया, टेट्राइड लिया, और वो क्यों लिया, किस लिए लिया, कैसे लगेगा, कैसे होगा, कैसे काम करेगा, देन इट वर्क्स आउट। और ये जब भी हम बांध लेते हैं बबीता, एक बार हमने वंस वी हैव फिक्स्ड अप द कलर्स, वी नो द स्कीम्स, देन वी थिंक अब ये लगाना कैसे है, विच वी कॉल एज प्रोजेक्टिंग द कलर्स। प्रोजेक्टिंग कैसे करूं, अब आपने किसी रूम को, तनिष्का कह रही कि सर मैं चाहती हूं कि मैं व्हाइट ही रखूं, बट मुझे वहां पे दो कलर्स ऐड करने हैं, तो उसके पास ऑप्शन है फर्नीचर, फर्निशिंग्स, लाइट, पैटर्न्स, टेक्सचर्स, स्टैचू। अब किस चीज से करेगी, कैसे उठाएगी उन कलर्स को, फील फैक्टर, मूड फैक्टर उभारेगी। तो दैट इज व्हाट वी एग्जैक्टली अंडरस्टैंड इन द होल कंसेप्ट ऑफ कलर प्लानिंग। कलर पहले तो ढूंढना मुश्किल होता है, मिल जाने के बाद फिर उसको स्कीमिंग बनाना और फिर प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्टिंग कलर्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग अ कलर एक्सपर्ट हैज टू गो थ्रू। बिलीव मी, देयर विल बी अ टाइम इंटीरियर डिजाइनर से लोग कलर्स नहीं पूछेंगे, कलर एक्सपर्ट से पूछेंगे। फॉरेन में कलर एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, उनकी एसोसिएशंस हैं, फैशन वाले, टेक्सटाइल वाले, आर्किटेक्ट्स का, इंटीरियर, सब लोग कलर एक्सपर्ट से कंसल्टेशंस लेते हैं। इट इज अ मोर डेवलप्ड प्रोफेशन इन फॉरेन देन इन इंडिया, more developed. They have awards, and for last 30-40 years all these things are happening across the world. When you will browse, you'll find association of color experts, and this is happening internationally. So क्या यूज करूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये लाइट्स हैं, हम लाइट के साथ जनरली इंटीरियर डिजाइनर्स को इश्यूज आते हैं कि हम लाइट को कैसे लगाएं, कहां लगाएं, क्या थॉट लेके लगाना है। आप देख रहे हो लाइट्स लगी हुई है वॉल पर, इंपैक्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं। प्लेइंग विद लाइट्स इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, वेरी क्रूशियल थिंग। और आपको एक और बात बता देता हूं, यहाँ पे कई सारे लोग हैं, कई सारे डिजाइनर्स भी बैठे हुए हैं। देवांश, एक बहुत बेसिक सी बात है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो लोग
न्यूट्रल्स में खेलते हैं और उसके बाद लाइट्स अल्टीमेटली लगा के एक इफेक्ट डाल देते, बट वो फिर अल्टीमेट जो आपने तड़का डाला है ना, फिर वो आपका बड़ा पावरफुल होना चाहिए। कौन सी लाइट्स लगी हैं कैसी, तो बड़ा इंपैक्टफुल है। तो लाइट्स एडिटिव कलर्स कहलाती है। इट इज वन पार्ट ऑफ द कलर। सब्ट्रैक्टिव इज पिगमेंटेड कलर्स, इसकी कलर थ्योरी अलग है। एडिटिव जो होते हैं वो कलर्ड लाइट्स होती है। इट्स अ वेरी पावरफुल डोमेन। तो ये मैं बहुत बार बोलता था कि जब हमने इंटीरियर डिजाइन में पढ़ा तो हमने पढ़ा RYB, रेड येलो एंड ब्लू आर द थ्री प्राइमरीज। पर जब कंप्यूटर पर काम करे तो RGB। ये बात समझ नहीं आ रही, पढ़ाते कुछ और है होता कुछ और है। RGB क्यों मांग रहा है, तो RYB मांगना चाहिए। इट टुक 3 years to understand that additive colors, subtractive colors are different, their theories are different. I need to understand them very carefully. आज भी यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनको एडिटिव सब्ट्रैक्ट का डिफरेंस नहीं पता होगा। तो किसी भी इंटीरियर्स के अंदर लाइट उसकी एनर्जी को बहुत पावरफुल उठा सकती है। ये वास्तु में मैं भी बात बताऊंगा जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आप कई डायरेक्शंस को लाइट की एनर्जी से बहुत अच्छा उठा सकते हो। वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन एक्टिवेट देम। आप सटल रख सकते हो किसी भी कलर स्कीम को। टेक्सचर्स बहुत ब्यूटीफुल तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वेलवेटिश टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। अब अगर मेरे फेवरेट कलर के अंदर जो मेरा फर्नीचर है उसकी अपॉस्ट्री होती है और मेरा फेवरेट कलर हो, मेरा फेवरेट टेक्सचर हो, आई एम गोना फील अमेजिंग। अमेजिंग। टेक्टाइल क्वालिटी मैटर करती है, वो आपको स्टिमुलस दे सकती है। तो आप जो भी टेक्सचर, वॉट एवर टेक्सचर यू आर थिंकिंग ऑफ, दैट टेक्सचर शुड बी वेरी वेरी अपीलिंग टू यू। एंड समथिंग दैट वी प्राइमरीली recommend people to introspect is patterns. For example, how is butterfly different from a bird? Where can we use butterfly? So butterfly, repeat, repeat, repeat is a pattern. Small to big butterfly is a pattern. Multiple butterfly is a pattern. Birds is a pattern. So what do you think are the things we should repeat? Can we go for a lion? I don't know. मुझे तो नहीं लगता, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा किसी के कहीं पे। बट पहले के जमाने में कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में लाइन यूज होते थे, लेकिन हर जगह नहीं, है ना। तो कौन से पर्पस के लिए हमें कौन सी शेप्स को यूज करना चाहिए पैटर्न बना के कलर के साथ, सो दैट वो ब्यूटीफुली क्या हो, प्रोजेक्ट हो। कलर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो आप क्या चीज इस्तेमाल करने वाले हो उस विजुअल इंटरेस्ट के लिए, टू मेक द स्पेस मोर इंटरेस्टिंग, विल कम थ्रू द राइट पैटर्न्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर भी एक रेपिटेशन दिख रही है, रेपिटेशन नजर आ रही है, पैटर्न बन रहा है। ये भी टेक्सचर्स हैं अलग अलग, ये अलग अलग हम देख रहे हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि ये भी एक पैटर्न है। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पैटर्न। इसका अपना एक इंपैक्ट है। यही पैटर्न जो इस कलर में दिख रहा है, अगर ये रेड में होगा तो इसका डिफरेंट इंपैक्ट होगा। तो वी आर वेरी डीपली थिंकिंग कि मुझे अपने क्लाइंट के लिए एग्जैक्टली देना क्या है। अगर कोई पैटर्न चूज कर रहा हूं तो कौन सा पैटर्न दूं, उसकी साइकी को देखते। फॉर एग्जांपल, दिया इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, शी इज अ वेरी सेंसिटिव बट एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो अब मैं इंटेलिजेंस को उठाना चाहता हूं, सेंसिटिविटी को नहीं। तो इंटेलिजेंस के लिए मैं पैटर्न क्या चूज करूंगा, उसका फ्लो क्या चूज करूंगा, प्रोजेक्ट कैसे करूं। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट, वेरी ब्यूटिफुल पार्ट। और मैं बहुत प्राउड हूं इस बात को बोलने में। पूरी कंट्री के अंदर कहीं कलर इंटीरियर स्टाइलिंग नहीं होती, कलर का कोई प्रोग्राम नहीं होता। मैं जब सीखना चाहता था, मैं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूमने के लिए राजी था, किसी कंट्री में भी जाने के लिए राजी था और कितने भी खर्च करने के लिए राजी था। मुझे कलर्स चाहिए, मुझे कलर्स में बहुत कुछ चाहिए। सो कलर वॉज माई नीड, वॉज समथिंग दैट मेक्स मी फील सो गुड। आज भी हम कंटिन्यूसली कलर्स पर काम करते हैं। और डिजाइन गुरुकुल को स्टैब्लिश करने का प्रोफेसर डॉक्टर बीबी पुरी, जो कि मेरे टीचर, और मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही था कि हम लोग स्पेशलाइजेशंस लाएं बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। जो भी लोग बिल्डिंग इंडस्ट्री में हैं वो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम से कुछ स्पेशलाइजेशन ऐड करें, अपनी कमर्शियल वैल्यू, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी, सो दैट देयर नॉलेज इज डिफरेंट, सबके जैसा नहीं हो। क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक इंटीरियर डिजाइनर, दैट्स नॉट सफिशिएंट। आई वांटेड टू बी अ साइंटिफिक वास्तु एक्सपर्ट, देन हेल्दी होम, देन कलर। और कलर्स मेरे लिए हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ऑब्जर्व करते हैं एक और एग्जांपल। ये बहुत सारे पैटर्न्स हैं, सबका इंपैक्ट डिफरेंट है। तो हम किसी के लिए बस इसीलिए कुछ नहीं ले जा सकते रिया क्योंकि ये सुंदर लग रहा है। आप ये ग्रीन और ब्लैक वाला देखो, इसका अपना एक पर्टिकुलर इंपैक्ट है और ये 3D इंपैक्ट दे रहा है। ध्यान से देख पा रहे हो रिया, इसका एक 3D इंपैक्ट है। तनिष्का, आप देख पा रहे हो, देयर इज अ 3 डायमेंशनल इंपैक्ट। नाउ वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि हम क्या देने वाले हैं, क्या रिपीट करने वाले हैं, वो क्या शेप है जो रिपीट करेंगे, एंड हाउ माई क्लाइंट इज गोइंग टू लिंक विद इट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर फ्लावर्स वाइट है। ओके, कोई एक जने को अनम्यूट करते हैं और पहले तो ये पूछते हैं कि उनके किसी के घर में कोई वॉलपेपर लगा हुआ है, रेज योर हैंड। ओके, अचिंत आप अनम्यूट करो और बताओ कि क्या है वॉलपेपर पे। So बहुत subtle सा flowers, golden, yellow और black कलर के flowers है। ओके, कैसा फीलिंग आता है अचिंत? तो अच्छा अच्छा लगता है। ओके, लाइक स्पेस को बहुत एनहांस करता है और बड़ा एनहांस बनाता करता है। है। वेरी ब्यूटीफुल। अब जैसे ये रूम है, अब इसके अंदर फर्नीचर भी वाइट सा ही है, बैकग्राउंड भी वाइट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या हम इन फ्लावर्स का कलर चेंज कर सकते हैं, तो आप क्या फ्लावर्स का कुछ भी, अभी जनरल बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ कोई बैठा नहीं है तो उनको काउंटिंग में नहीं ले रहे हैं, बट वाइट में इतना वाइट इज ओके इफ द क्लाइंट लाइक्स, बट मैं तो चाहूंगा कि हम थोड़ा सा स्पेस को वैल्यू दें, तो हम क्या कर सकते हैं फ्लावर्स में? So फ्लावर्स का कलर थोड़ा मिक्स अप कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वाइट थोड़ा यस, मिक्सचर ऑफ सम कलर्स। क्योंकि ये लाइक फूल उसके उभर ही नहीं टोन्स रहे। दे दें। आप देख रहे हो अचिंत, ये फूल उभर ही नहीं रहे हैं। हम्म। फर्नीचर के पीछे का बैकग्राउंड और बैकग्राउंड के आगे का फर्नीचर सब एक दूसरे में मर्ज हो, वो स्पीक आउट नहीं कर रहा, वो शाउट नहीं कर रहा। और वैल्यू जो फ्लावर्स की है, जो उसका पर्पस है, वो और उभरना चाहिए था। तो जब भी हम कोई टेक्सचर्स यूज कर रहे होते हैं या पैटर्न्स यूज कर रहे होते हैं, तो उनमें एक साइमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट है। दो चीजों का एक दूसरे के आगे पीछे आने के बाद उन्हें एक दूसरे के कंपैरिजन में वैल्यू को उठाना चाहिए, जो इस केस में नहीं उठ रहा। सो बेसिक तौर पर कलर इंटीरियर स्टाइलिंग को हम ऐसे समझते हैं कि ये एक अनयूजुअल सा डोमेन है, एक स्किल सेट है, एक आर्ट है, एक साइंस है, और डीपर एक कंटेंट है। समय लगता है एस्थेटिक्स को समझने में, उसके साथ खेलने में, और that is why possibly the training that we conduct, the certification in color interior styling is an unusual training program, and मैंने पीछे भी कहा, आई फील प्राउड कि ये और कहीं होता भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं होता है। I want Saroj ma'am to talk about the program, and then we'll continue about Chromo Vastu. अभी हम directions की बात करेंगे, how different colors are used in different directions, and patterns can be helpful in certain cases. थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों से बात करने से पहले मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी। एक वीडियो के थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि एक्चुअल हम क्या बात करने वाले हैं और क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं हमें इस कोर्स से। आज हम क्रोमो वास्तु के बारे में बात करें। हम सभी लोग जानते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन कम्युनिकेशन की डायरेक्शन, और यहां पर अगर मिंट या फिर ओपल जैसे कलर किए जाएं तो क्लैरिटी ऑफ थॉट अपने आप आने लगे। मिंट और ओपल जो है वो 180 डिग्रीज के आसपास के कलर्स हैं, जिसमें वाटर एलिमेंट स्लाइटली होता है, वो क्लैरिटी देते हैं, कम्युनिकेशन बेहतरीन कर देते हैं ये दो रंग। अगर आप रिलैक्स्ड फील नहीं करते, नॉर्थ डायरेक्शन अगर आपकी क्लोज्ड है, तो वहां पर ल्यूसेंट पिस्टैच्यू कलर कराएं, या फिर एक और बेहतरीन कलर है जिसका नाम है ग्रीन बर्ड। आप केवल नॉर्थ की दीवार पे ये कलर कराएंगे, चेयर सामने लेके बैठेंगे, रिलैक्स्ड फील करने लगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टिप देता हूं, हार्ली क्वीन एक ऐसा कलर है जो नॉर्थ डायरेक्शन में चीयरफुल डिस्पोजिशन दे सकता है। चीयरफुल डिस्पोजिशन मतलब एक मस्ती, मजा, एक मुस्कुराहट। तो आज हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे जिससे नॉर्थ एक्टिवेट किया जा सकता है पावरफुल एनर्जी ऑफ कलर्स।
कलर इंटीरियर स्टाइलिंग वर्ल्ड के यूनिक प्रोग्राम में से एक है। जिन लोगों को कलर्स का पैशन है, जो अपने घर को स्टाइलाइज करना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अमेजिंग लर्निंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम अपने घर को किस तरह से सुंदर बनाएं, ये सीखते हैं और बहुत मेजर फोकस कलर्स पर होता है, क्योंकि सभी कलर्स मटेरियल का बेस है। इस प्रोग्राम में हम 100 से ज्यादा रंगों की साइकोलॉजी समझते हैं या उन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे इंडियन रेड, बर्गंडी, चेरी, वर्मिलियन, गैम्बोज, रो अंबर, मेज, सिट्रस ग्रीन, पिस्तेचू, ग्रीन बल या इनके क्या कैरेक्टर्स हैं, ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं। 100 रंगों के बारे में हम समझते हैं और उनको किस स्पेस में इस्तेमाल करने से क्या बेनिफिट लिए जा सकते हैं, कैसे ये एक दूसरे से अलग है। रंगों की दुनिया के बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स को समझते हैं। कलर्स को जब समझ जाते हैं, फिर हम ये समझते हैं कि कलर स्कीम कैसे काम करती है, किसके साथ कौन सा कलर जादू करता है, उनका नोटेशन क्या है, कितना ब्राइट कोई कलर होना चाहिए, कितना लाइट कोई कलर होना चाहिए, किस स्पेस पर कलर का उपयोग कैसे किया जाए, इंटीरियर डिजाइन या कलर में क्या लिंक है, उसके प्रिंसिपल क्या हैं। इस प्रोग्राम में हम ये सीखते हैं कि किसी भी दीवार पर पेंट कौन से, कहाँ या कैसे यूज किया जाए, कैसे कलर लाइट्स का यूज किया जाए, कैसे टेक्सचर का यूज किया जाए, क्या यूज किया जाए, कलर के ग्राउंड पर पैटर्न कैसे यूज किए जाएंगे, पेंटिंग्स कैसी होंगी। अगर आप कोई कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, और वास्तु एंड कलर्स यानी क्रोमो वास्तु से कैसे एक जादू बिखेरते हो। ऐसे 100 कलर टेक्निकलिटीज, कलर की लैंग्वेज, घर की इंटीरियर डिजाइनिंग, इन सभी फंडों को ले कलर इंटीरियर स्टाइलिंग आता है। अगर आप पैशनेट हो तो आप इस प्रोग्राम को कर सकते हो। डिटेल्स के लिए क्लिक करें। इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन में सभी छात्रों को ई बुक मिलती है या कंप्लीशन के बाद उनको कलर इंटीरियर स्टाइलिंग में एक सर्टिफिकेट मिलता है, और आगे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जैसे कि कमर्शियल वैल्यू में बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का बढ़ना और कलर के ऊपर टेक्निकल गाइडेंस भी मिलती है। ये प्रोग्राम कलर्स में आपकी मास्टरी करता है, इसीलिए बिल्डिंग इंडस्ट्री के सभी लोग, इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा जो हाउसवाइफ्स कलर इंटीरियर स्टाइलिंग सीखना चाहती है या जिनका इंटरेस्ट है, उन सबके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और ये उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा एक स्पेस को समझने का और उसे स्टाइलाइज करने का। ये प्रोग्राम डॉक्टर आर.एम. मेहरा के गाइडेंस में होता है। डॉक्टर आर.एम. मेहरा का 20 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। वो एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, भारत के प्रमुख कलर कंसल्टेंट्स में से एक हैं, साइंटिफिक वास्तु एवं हेल्दी होम एक्सपर्ट हैं। कलर में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, तो इस प्रोग्राम में आपको ये सब नॉलेज मिलेगी। जिस कोर्स की आज हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज अ रेयरेस्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं करवाया जाता एक्सेप्ट डिजाइन गुरुकुल के। सो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक नंबर है, जो भी लोग इंटरेस्टेड है इस कोर्स को करने के लिए, दे कैन सेंड मी रिक्वेस्ट। सो वी विल शेयर द ऑल डिटेल्स ऑफ द कोर्स एंड ड्यूरेशन एवरीथिंग विद यू। सो हम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है अभी से। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर इसके एडमिशन्स होंगे। जितनी जल्दी आप लोग सीट रिजर्व करेंगे, उतनी जल्दी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। एंड ये हम लोग ईयर में एक ही बार करते हैं। इस बार होगा देन नेक्स्ट ईयर होगा, बिकॉज ये रेयरेस्ट प्रोग्राम है, बार बार रिपीटेशन में नहीं आता है। इट इज अराउंड वेरी गुड कोर्स फॉर यू एज पर इंटीरियर एस्पेक्ट। अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा चीजें, जैसा कि सर ने बताया कि इंटीरियर में कलर टेक्सचर पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप अपनी डिटेल्स जो है इस नंबर पर जो स्क्रीन पर है आपके सामने 9650237918, इसके ऊपर आप अपने रिक्वेस्ट डाल सकते हैं एंड वी विल शेयर ऑल द डिटेल्स विद यू। और बहुत सारे लोग हैं और आज से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट आपकी आ रही है। आई एम रिसीविंग लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट, तो आप सब लोग अपने रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और हम लोग इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करेंगे और बहुत जल्दी हम लोग के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे बिकॉज आर बहुत लिमिटेड बच्चों को लेकर हम लोग इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सिलेक्टेड एंड लिमिटेड स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। Okay, Ji. Thank you, thank you, thank you. We were supposed to talk about Chromo Vastu. The Chromo Vastu is not a normal term कि हम कहते हैं कि सब लोग जानते हैं। कलर वास्तु में कलर्स बहुत लिमिटेड है, 7-8 कलर्स, 10-12 कलर्स मैक्सिमम। कि एक रेड हो गया, वो एक्चुअली कोरल रेड होता है जिसको सब रेड बोलते हैं। रेड की फैमिली में एबरेंथ है, स्कारलेट रेड है, ममीलियन वर्मिलियन रेड है, देन इंडियन रेड है। ये सब अलग अलग तरीके के रेड है। बट अगर हमें वास्तु में भी इंपैक्ट निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू एक्टिवेट साउथ। साउथ डायरेक्शन में द प्लैनेट इज मार्स। मार्स के लिए आपको कोरल रेड ही लेना होगा। इफ यू टेक मजेंटा, मार्स का इंपैक्ट नहीं आएगा बिकॉज उनके स्पेसिफाइड कलर्स हैं। ऐसे ही जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, द कलर इज, हम पीताम्बरी बोलते हैं हिंदी में, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं पीला ले लो। ध्यान रखिएगा, देयर कैन बी 3 येलोज। वन इज मेज। मेज इज द कलर ऑफ जुपिटर। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक कलर विच इज लाइटिश येलो। Bright yellow is the color of sun. They are not the same. One is maize. Maize is a light yellow. Bright yellow is color of the sun. And the third mustard kind of a yellow is the basically the color for that we will use for earth element. So I am talking about yellow only, but yellow can be 3 and used for 3 different purposes. One, light yellow called maize. Second, bright yellow, goldenish yellow for sun, activating east direction. And third is dark, dusky yellow for earth element, southwest. So yellow can be used at 3 places, but for the 3 different purposes. So when we talk about Chromo Vastu, that means directions and colors. Even if you have to activate a direction, we have to be very, very conscious. इसमें क्या होता है Chromo Vastu के अंदर? The color of north, that is Mercury, is emerald green. Emerald green is 128 degrees, 50%, 100%. It's a very specific color. इस पर मरकरी की एनर्जी उठने लग जाती है। वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग। नॉर्थ के अंदर कम्युनिकेशन उठाना में ये भी मदद कर सकता है। बट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हम नॉर्थ के अंदर कौन सा यूज कर रहे हैं कलर, एमरल्ड ग्रीन कर रहे हैं। बट अगर किसी के यहां भूल से कोरल रेड यूज हुआ है तो कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा। यू विल फील प्रेशर इन दैट रूम बिकॉज व्हाई? दैट कलर कोरल रेड इज द कलर ऑफ मार्स. All those who know basic Vastu, they know Mercury and Mars are inimical to each other. Not very good, not a very healthy relationship. Now, even if we talk about the planets or deities, उनके भी अपने अपने रंग हैं, बड़े स्पेसिफाइड नोटेशंस हैं। एक और बात जो मैं क्रोमो वास्तु में ऑब्जर्व करता हूं वो ये है कि ज्यादातर वास्तु एक्सपर्ट, मैंने बोला 10-12 कलर्स के साथ खेलते हैं। हम जनरली चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कम से कम 25-30 रंगों के साथ बातें करें, बिकॉज कुछ कलर्स हैं जो उसकी एनर्जी को उठाएंगे और कुछ कलर्स हैं जो वहां पे बस ओके होंगे। जैसे नॉर्थ में आप एमरल्ड ग्रीन ले सकते हो, आप स्प्रिंग बड ले सकते हो, लाइट ब्लू ले सकते हो। आर्कटिक ब्लू वाटर की एनर्जी को बहुत अच्छा एक्टिवेट करता है। जब हम फंड्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आर्कटिक ब्लू लेते हैं। अगर आप हीलिंग का इंपैक्ट देना चाहते हो एंड स्पेशली द पदा इज N6, तो ग्रीन बर्ल लेना चाहते हैं। ऑफ वाइट जनरली बहुत अच्छा कलर है। पिपरमेंट कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है। एक्वामरीन, ये चार्ट हम लोग वैसे भी स्टूडेंट्स को वास्तु के अंदर देते हैं जब वो लोग 1 ईयर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन एक्चुअली उन लोगों को कलर्स बहुत डीप इसलिए क्योंकि हम जब 100 कलर्स पढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में तो इट टेक्स टाइम, लाइक आई थिंक 18 hours or more than that, because every color takes a lot of time to understand.
देन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मिंट कैसे डिफरेंट है, एक्वामरीन कैसे डिफरेंट है, इसको मैं कहाँ यूज करूं। बट ये लिस्ट हम तब भी 1 ईयर वाले में भी डाल देते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स हैव अ लिस्ट। तो कैपिटल लेटर्स में वो होते हैं जो नाम उनको एक्टिवेट करते हैं, और कुछ सेंटेंस केस में होते हैं जो यूज हो सकते हैं। ताकि वही कम्युनिकेशन, वही मनी की डायरेक्शन जो नॉर्थ है, जो यूथफुलनेस की डायरेक्शन है, वहां अगर आपने एमरंथ यूज कर लिया, क्रिम्सन यूज कर लिया, इंडियन रेड यूज कर लिया, तो वहां की एनर्जी एकदम डल हो जाएगी, एनर्जी उठेगी नहीं। फिर एक बात और मैं यहां पर बात करना चाहता हूं कि नॉर्थ, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, वी नेवर गो फॉर डार्क कलर्स। जैसे हमने नोटेशन की बात करी, वी विल अवॉइड डार्क कलर्स इन ऑल केसेस इन नॉर्थ। तो हमने जब HSL की बात करी, तो L मींस द वैल्यू विल बी हाई, इट विल नेवर बी लेस देन 60%। तो नॉर्थ में आप वेदर यू गो फॉर ग्रीन्स, यू गो फॉर ब्लूज, द वैल्यू विल बी 60-65% एंड अबव। Even if you go for blue and it is a dark blue, it will not help us. We need lighter colors because it's a direction of thermal and visual comfort. तो आप मनी को इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करो, यूथफुल एनर्जी को इंप्रूव करो, आप डार्क इंटेंस कलर्स नॉर्थ में नहीं ले सकते हो। तो यहां पर भी कलर की एनर्जी, उनकी हार्मनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा, वास्तु में क्या होता है, आपको थीम पता चल जाता है। जैसे ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ नेम एंड फेम। Now there is a guidance here that okay, name fame improve ईस्ट से किया जा सकता है, right? Because सूर्य है, इंद्र है। Now you will go for yellowish orangish color, done. When you have a theme that this is the direction of a king, it can make me a leader in my industry, it can add name and fame. Now that pattern will be very important in Vastu because Vastu will guide you in that way. क्रोमो वास्तु के अंदर क्या होता है, नेम फेम हेल्थ ईस्ट डायरेक्शन से लिंक्ड है। तब आप ये सोचते हो कि मेरे को कौन सा पैटर्न यूज करना है। पैटर्न्स के अंदर फॉर एग्जांपल हम लोग फर्नीचर की अगर बात करें तो हाई बैक चेयर ले लेते हैं ईस्ट के अंदर, विच इज लाइक अ किंग, मे बी क्राउन ले लेते हैं और वहां पे कलर का इस्तेमाल करते हैं सो दैट 3 डायमेंशनली वो उभर कर आ जाए। तो when we are talking about Chromo Vastu color, the same funda, once you learn the 100 colors, then possibly you pick up that color and then you think कि यहाँ की डायरेक्शन की एनर्जी और कैसे उठाऊं। तो जो पैटर्न आप यूज करते हो वास्तु में, वो बहुत पर्टिकुलर पैटर्न होगा, not anything. It will be a very particular pattern. For example, when I was talking about color interior styling, you are using some furniture according to the client, the psychology, possibly the availability of the light, the energy level you want. According to that, the triggers of the chroma and the light will vary. But all those people who are practicing Vastu, possibly they get more thematic ideas of a 2D or a 3D wall. Thematic ideas कि मुझे ये कैसे उभारना है, तो मेरे लिए वो 3D चीजें कैसे होंगी। तो for all the strong remedies also, the color will be helpful. जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो, जो थॉट आप लाना चाहते हो वास्तु में, उसके लिए भी वो हेल्पफुल हो सकता है। कि हमने येलो कलर लेना था, हमने सनफ्लावर का वॉलपेपर ले लिया, तो वहां पे भी वो मदद हमें कर सकता है। जैसे नॉर्थ के अंदर हम लोग एक कंसेप्ट की बात करते हैं, नॉर्थ ऑफ द हाउस, विच वी कॉल एज द हीलिंग काउच। तो उसके अंदर वी क्रिएट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ ग्रीनरी एंड देन वी कीप अ चेयर ऑफ अ पर्टिकुलर कलर इन द सेंटर। सब तरफ से, 3 तरफ से देयर इज अ ग्रीन प्लांट्स ऑल अराउंड एंड देन देयर इज अ चेयर ऑफ अ पर्टिकुलर साइमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट इन द सेंटर। जब ये प्लांट सब तरफ आएंगे देन देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हीलिंग इम्पैक्ट विच इज ऑल अराउंड यू। तो ये कहां पर क्रिएट कर रहे हैं, उनके पर्टिकुलर सेक्टर्स में, उनके पर्टिकुलर जोन्स में। एक और चीज जो बड़ी अच्छी हम लोग यूज करते हैं, जो पहले जो स्पेक्ट्रोक्रोमोमेट्री के अंदर यूज होती है, कि वी आर यूजिंग इफ एट अ पर्टिकुलर स्पेस सम कलर्ड ग्लासेस, natural light will pour through the glass, will fall on you, and because this is natural sunlight is photonic shower, so that natural colored light which will fall on you possibly also has an impact because it's a photonic shower. तो every color has a different impact. जब हम लोग स्पेक्ट्रोक्रोमोमेट्री पढ़ते हैं तब हम ये समझते हैं कि किस तरीके से न्यूटन ने, बैबेट ने, फ्रॉनहोफर ने जो कलर केमिस्ट्री पर काम किया और कलर फिजियोलॉजी पर काम किया, वो बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो कलर्ड ग्लासेस यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और कंट्री के बाहर भी और कंट्री के अंदर भी सोलेरियम्स होते थे, आज अब कम होते हैं, उसके ऊपर चर्चा बहुत कम होती है। तो बिल्डिंग के अंदर बहुत एंशिएंट तरीके से भी कलर की एनर्जी को और कलर्ड ग्लासेस के थ्रू और अच्छा यूज किया जा सकता है।
So basically, this is the max I wanted to talk about. And now I'm open for your doubts. If you have any, I can certainly take your doubts.